And, so we are in unit 3rd. We were discussing this. We have discussed this optical transitions in bulk semiconductor. We have discussed 30 processes: absorption, spontaneous emission, and split emission. And we were talking about joint density of states. So as I have advised you to watch the video shared on LMS about joint density of state, where the professor from IIT Delhi, ML discussed this concept of joint density of state. So I hope you have watched it. And today we will be taking more about that, and then this topic, density of states of photons, and then this we will try to go to discuss about what is transition rate. Transition rate means these processes, what is the rate for that? Absorption, emission, stimulated emission, इनका रेट कितना कैसे हो रहा है, कितने टाइम में कैसे हो रहा है, तो उसको हम एक फार्मूला से डिस्कस करेंगे. So there are few things which are very interesting for the concept we have discussed as of now. जैसे ये की पिक्चर है, इसमें अलग अलग कई सारे कंसेप्ट दिखा रहे हैं जो हम लोगों ने अलग अलग सीखे हैं. जैसे यहाँ पे बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, जो बैंड स्ट्रक्चर हमने सीखे है, इसको हम लोग ECE भी कहते हैं. वी आर यूजिंग इट वेरी फ्रिक्वेंटली. देन डेंसिटी ऑफ स्टेट जो हमने कैलकुलेट किया था, इफ यू रिमेम्बर वी हैव डिराइव्ड इवन फॉर डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉन एंड होल, मींस इन कंडक्शन बैंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, for holes in valence band. So for bulk semiconductor, it was proportional to the e to the power half. So it was a parabola. So you see that is structure. This is how it varies, sensitive state. And then occupation probability was calculated using 1 minute. Yeah. Using this Fermi-Dirac distribution function, where we define that occupation probability is half for at Fermi energy. So this is the Fermi level where you see this is half. So there are different plots. By seeking at these plots, you can have an idea about how things vary. So this is how density of state varies, and this is how occupation probability varies. So this is, you see, here it is 1. So it is occupied up to this, and goes like that. And if you remember, we used to calculate carrier concentration using density of state multiplied by occupation probability. So if you multiply these things, then you get something like this. It is the concentration, carrier concentration. So sometimes you may see in books these all three graphs are made in a single graph. You see, this is density of state, this is occupation probability, this is carrier concentration. And we have discussed this processes related to transition क्या होते हैं. हम लोग क्योंकि ऑप्टिकल लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने जब ट्रांजिशंस की बात की है, तो जो रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस की बात की थी क्लास में, तो जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस हैं, वी डोंट वांट दैट फॉर ऑप्टिकल optoelectronic devices. We want radiative transition, we want more and more light. So, we can do certainly minimize non-radiative transition, but we cannot remove it. So radiative transition or with a radiative recombination. Recombination जब होगा तभी फोटॉन निकलेगा. Absorption के लिए तो हमको फोटॉन देना पड़ेगा. So these are three processes it says for radiative transitions, and so we have discussed this in different perspectives. Now ये जो कंडीशन क्या है एब्जॉर्प्शन और इमिशन के लिए, ये जो प्रोसेसेस हैं, जो ऑप्टिकल ट्रांजिशंस हैं, इनकी क्या क्या कंडीशंस हैं, हम लोगों ने
इसको अलग अलग तरह से डिस्कस किया है कि एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन होना चाहिए। मतलब जो स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जा रहा है तो इट इज एन अब्जॉर्प्शन, तो जितना वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा उतना ही गैप होगा दोनों स्टेट के बीच में। इफ देयर इज फाइनल लेवल इज E2, इनिशियल लेवल इज E1, so even E2 minus E1 is the energy of photon that is given by h nu. Momentum should be conserved. So from this energy and moment of electron and holes का एनर्जी मोमेंट और जो फोटॉन है वो, तो वो सब चीजों को अगर हम एक साथ ऐड करते हैं देन वी गेट दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से हमको कुछ और फैमिलियर कॉन्सेप्ट मिलते हैं। जहाँ पे हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट डिफाइन करने की बात कर रहे थे। सो जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने लास्ट टाइम जब बात कर रहे थे उन्होंने बोला कि क्योंकि इस सब ट्रांजिशन में हमको दो स्टेट चाहिए, एक बैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में, और दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा स्टेट जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट डिफाइन करते हैं। तो ये जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट का ये फॉर्मूला है। हम लोग इसके डेरिवेशन की बात धीरे धीरे करेंगे। Conservation and then for parabolic approximation अगर हम लोग बोले कि ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। So there are many prepare almost every day she join at 20 minutes late, so try to join at the right time, otherwise बाद में फिर समझ नहीं आएगा। E2 minus E1, this is from valence band, this is from conduction band, this is band gap, यहाँ से मिला के और ये एनर्जी h के बराबर होनी चाहिए। This formula is come, there is an effective mass of kind of concept here. This is effective mass of hole in transient, this is effective mass of इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, और फिर दोनों को बोल के, क्योंकि हम लोग एक कंबाइंड पूरे ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ स्टेट फोटॉन के लिए बोलें, या हम लोग एक ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फ्रॉम देयर दिस फॉर्मूला nu minus h nu is the energy of photon. It cannot be less than bandgap. जो फोटॉन इमिट होता है इमिशन में या एब्जॉर्प्शन के लिए जो फोटॉन चाहिए होता है उसका एनर्जी इट इज नियरली इक्वल टू द बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर। इससे कम नहीं हो सकता। जो स्टेट है वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच का स्टेट है, तो जो हम लोग बैंड गैप डिफाइन करते हैं वो एज टू एज डिफाइन करते हैं। इस वजह से दिस कंडीशन इज ऑलवेज देयर व्हेन वी आर डिफाइनिंग ऑप्टिकल जॉइंट डेंसिटी। So there are आगे हमने ट्राई किया है कि इसके डेरिवेशन को नंबर ऑफ इमिशन पर यूनिट वैक्यूम अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं, so it is defined by एक तो हम ये जानते हैं यानी is given by rho c which density of state in conduction band and then Fermi function। इससे क्या मिलता है, इनको कैरियर कंसंट्रेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन is given by this formula, we have already discussed this, this is for holes। then even E2 जो है, जो एनर्जी यहाँ पे हम डिफाइन करें, even is the energy of state in balance band, E2 is the energy of state in conduction band। और यहाँ पे हम कुछ जो भी एब्जॉर्प्शन और इमिशन होगा, इमिशन दोनों की बात करें तो जो फोटॉन निकलेगा उसका एनर्जी जो बैलेंस कंडक्शन बैंड के स्टेट की एनर्जी है, बैलेंस बैंड की जो स्टेट की एनर्जी है, दिस इज नोन एज पैराबोलिक अप्रोक्सीमेशन। So it is valid only in the bottom,
क्योंकि ये बॉटम में इसका जो स्ट्रक्चर है दिस इज पैराबोलिक स्ट्रक्चर का हमसे। तो हम लोग E2 ये जो स्टेट है, अगर हम इसकी एनर्जी निकालना चाहें तो इसकी एंड देन जो बीच में कुछ एनर्जी है और ये जो स्टेट ऊपर हो जाती है, तो दिस कम्स फ्रॉम एंड द वेव वेक्टर h bar square k square upon 2mc, this is direct parabolic approximation। एंड जब E1 का एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ पे EV एंड क्योंकि ये स्टेट उस EV से नीचे है, तो EV माइनस h बार स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2mc, तो E1 E2 का एनर्जी हम यहाँ पे रखते हैं। एंड देन इफ वी डू E2 minus E1, E2 minus E1 is equal to h nu for energy conservation, then you put these values here, EC minus EV plus h bar square k square upon 2 1 upon mc plus 1 upon mv। इसको हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं। और EC माइनस EV EG होता है तो h nu is equal to EG plus h bar square k square upon 2 mr, and then from this we can calculate the value of k square is equal to, इस इक्वेशन पे अलाइन कर रहे हैं h nu minus EG to mr upon h bar square, so this is how we get k square, and then we put this value of k square in that equations। यहाँ पे जो हम लोगों ने ये इक्वेशन डिफाइन किया पैराबोलिक एप्रोक्सीमेशन से E1 एनर्जी लिखा, और फिर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से एक इफेक्टिव जैसा कुछ डिफाइन किया, एंड देन दिस वैल्यू k स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे हम रख दे रहे हैं। तो E2 इज इक्वल टू EC प्लस h bar square upon 2mc 2mr upon h bar square h nu upon h nu minus EG, h bar square कैंसिल हो जाएगा, 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, E2 is equal to EC plus mr upon mc h nu minus EG, ये इक्वेशन आया। फिर हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो मतलब इस पर्टिकुलर रेंज में कितना डेंसिटी ऑफ स्टेट होगा, so it can define the number of states for photon for energy between h nu and h nu plus t। तो ऐसे डिफाइन करेंगे, तो rho nu is equal to rho c E2 by d, और फिर इसमें ये 2mc upon h bar square 32 E2 minus EC। Differentiate this equation with nu, EG is a constant, this is a constant, so ये बचेगा h हमारे mc। तो from this equation you put this value here, and then 1 by h bar square 2 mc 3 by 2 mr by mc, then you get this equation। so ये अगर हम फोटॉन की डेंसिटी तो अप टू EG, अगर हम EG तक h nu की वैल्यू EG से कम है, देखो if h nu is less than EG then this number will be negative, something will be negative, और नेगेटिव का जब अंडर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इमेजिनरी हो जाएगा। so up to this is no density state, and then after EG this has a parabolic nature because you see this is power 1 by 2, this is parabolic, so density of shift is always this condition is there, h nu should be greater than EG। so this is how we define optical joint density of state का concept क्यों आया, then this density of state of photon, ये हम लोगों ने डिफाइन कर दिया। और फिर बेसिकली जैसे कि डेंसिटी ऑफ स्टेट हमने इलेक्ट्रॉन के डिफाइन किया था और होल के लिए डिफाइन किया था, वहां पे जब यहाँ ऑप्टिकल ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की फोटॉन के लिए। फोटॉन जब कब आएगा, फोटॉन जब भी आएगा तो हमेशा there is always a state
available in conduction band, there is a state involved in valence band, and then this transition occurs, and then only this concept of photon comes in. So for that, this is how the joint density of state and the density of state for basically अगर हम बहुत सारा detail में ना this is optical state, or we can say density of state for photon. So this is the formula. This formula is, and this is the condition for that. So this condition should be already. अभी हम लोग को आसानी से समझना था कि फोटॉन तब तक इमिट होगा ही नहीं जब तक जो एनर्जी है उसकी इट हैज टू हैज एनर्जी का जो डिफरेंस है जो दो स्टेट इन्वॉल्व है हम बोल रहे हैं कि जब भी ऑप्टिकल ट्रांजिशन होता है तो देयर आर टू स्टेट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजिशन one state in conduction band, one state in valence band, and then और दोनों स्टेट का अगर हम एनर्जी डिफरेंस लें क्योंकि इट इज कंजर्व्ड एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड तो उसका जो एनर्जी होगा फोटॉन का इट हैज टू बी हैज ऑलवेज ग्रेटर देन बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टर सो इट या तो ये बराबर हो सकता है या ज्यादा हो सकता है मोस्ट ऑफ द केसेस जो बैंड एजेस है उसके आसपास की जो स्टेट होती हैं दे आर मोर एक्टिवली इन्वॉल्व इन सच ट्रांजिशन सो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोगों ने जब रेडी टू नॉन रेडी टू ट्रांजिशन डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये बात किया कि ज्यादातर टाइम ऐसे होता है कि ये ट्रांजिशन में ये बैंड गैप के बराबर आसपास के जो फोटॉन होते हैं वो निकलते हैं ओके सो दिस इज वन कंसेप्ट अब जो नेक्स्ट चीज है ये है हम लोग चाहते हैं कि अगर हम इनके बारे में बात करें कि ट्रांजिशन रेट क्या है तो ट्रांजिशन रेट मतलब जैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है इमिशन हो रहा है या इमिशन मतलब इमिशन दो तरह का हो सकता है बट एज ऑफ नाउ वी कैन से देयर आर टू प्रोसेस इन जनरल एब्जॉर्प्शन और इमिशन एब्जॉर्प्शन में फोटॉन चाहिए होता है इमिशन में फोटॉन निकलता है तो कितना फोटॉन एब्जॉर्ब कर पाएगा कितना फोटॉन निकलेगा जब इमिशन हो रहा है तो इट डिपेंड्स अपॉन कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं तो वो जो ट्रांजिशन है तो हम लोग अगर हम उसको क्वांटिफाई करना चाहें उसको हम कुछ फार्मूला देना चाहें उसको हम थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो देयर आर द थिंग्स वी विल बी we need to understand on what factors it depends transition rate तो एक फर्मी गोल्डन रूल है वो इसके बारे में बताता है all this needs a lot of quantum mechanics से सब कैलकुलेशंस होते हैं लेकिन at this stage तुम लोग को हम मतलब चाहते हैं कि कम से कम ज्यादा डिफिकल्टी इन्वॉल्व ना हो थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे उसको समझा पाए ऐसा कोशिश करते हैं तो दिस इज मेनी टाइम इट इज क्वाइट चैलेंजिंग टू एक्सप्लेन थिंग्स विदाउट गोइंग इनटू द डीपर डिटेल ऑफ थिंग्स सो बट एट दिस लेवल हम लोग उसको बहुत डिटेल में जाके कहना बताना ठीक नहीं है क्योंकि वो समझ में फिर बिल्कुल समझ में आना बंद हो जाएगा तो थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहो और कुछ ग्राफ कर पाओ इसलिए थोड़ा सा इजी तरह से समझाने का कोशिश करते हैं तो ट्रांजिशन रेट हम लोग समझ गए जैसे कोई भी किसी भी चीज का रेट है तो कितना कैसे ट्रांजिशन हो रहा है कितने तो उसको हम लोग अगर क्वांटिफाई करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है तो क्या क्या करेंगे ट्रांजिशन रेट मतलब probability densities to determine probability densities of a photon being emitted or absorbed by a semiconductor material in a direct band to band transition.
तो जब हम लोग अभी बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हो रहे हैं, और क्योंकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है तो इस obviously we are focusing on direct bandgap semiconductors. तो जो भी ये ट्रांजिशन है ये मेजर मेनली 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे डिपेंड करेंगे। एक ये की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अदर इज ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटीज, एंड देन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स का नेचर है वहां पे हम जब भी कुछ बात करते हैं तो वी डोंट से थिंग्स विद लॉट सर्टेनिटी, वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो यहाँ पे बोले कि जो इस ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन, all this is quantum mechanical phenomena. If I try to understand this process, we have to involve the quantum mechanical treatment. So एक चीज हम लोग अगर बहुत सिंपल तरीके से बात करें, ये बोले कि ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी। तो इफ यू रिमेम्बर ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते थे फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कंडक्शन बैंड में लगाते थे और बोलते थे कि ये स्टेट की ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी ये है। दिस स्टेट इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज गिवन बाय फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, सो देन जब हम लोग होल की बात करते थे कि होल के क्या है, तो 1 माइनस फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो फर्मी फंक्शन था उसको 1 माइनस कर देते थे। इसकी जो होल है इट इज वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं है, इसका मतलब वहां पे होल है। तो अब बात करो इमिशन और एब्जॉर्प्शन दो प्रोसेस की। तो इमिशन में क्या चाहिए, इमिशन में ये चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, वो नीचे एक होल के साथ रिकम्बाइन हो जाता है। वैलेंस बैंड में कोई होल है उसके साथ रिकम्बाइन हो जाता है और इस प्रोसेस में एक फोटॉन निकलता है। तो हमको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए कि कोई भी, अगर हम बोले कि इमिशन हो रहा है तो इमिशन के लिए एक तो ये चाहिए कि कंडक्शन बैंड में एक स्टेट हो जहां पे इलेक्ट्रॉन बैठा हो। Means there is one state which should be occupied by an electron in conduction band, and then there should be one state in valence band which is not occupied by electron, means there is a vacancy which is occupied by hole. तो इमिशन के लिए हमको दो स्टेट चाहिए, कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वैलेंस बैंड में एक होल चाहिए। तो अब हम जब बोलें कि ये प्रोबेबिलिटी ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी फॉर इमिशन, यहाँ हम बोले कि इमिशन के लिए, इमिशन के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे हम लोग निकालेंगे। तो इमिशन की प्रोबेबिलिटी के लिए दोनों स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हम लोग कैरियर कंसंट्रेशन जब निकालते थे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट को मल्टीप्लाई करते थे ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी से, तो हमको कैरियर कंसंट्रेशन पता चल जाता था। तो ऐसे ही जब हम इमिशन की बात कर रहे हैं, सिंस वी नो for an emission there are two states are involved. One state is in conduction band, one state is in valence band. तो कैसी कैसी स्टेट चाहिए, कंडक्शन बैंड में स्टेट ऑक्युपाइड चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए वैकेंसी, और वैलेंस बैंड चाहिए हमको एक ऐसी स्टेट हो जो unoccupied by electron, this is occupied by hole की vacancy. तो अगर देखो the formula, this is for emission, FE new, F मतलब because we are representing it is Fermi function, हम लोग F से Fermi function रिप्रेजेंट करते आए हैं, ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने F ले लिया। This E is for emission and is the frequency, जो emission हो रहा है उसमें जो जिस frequency का फोटॉन निकलेगा उसकी frequency की हम बात करते हैं। So FE is equal to FC E2. E2 is the energy state in conduction band
E1 is the energy state in valence band. So FCE2 क्या बोलता है, मतलब एक E2 स्टेट है, उसकी ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय FCE2. FC मींस कंडक्शन बैंड, E2 तो मतलब एक E2 स्टेट है, वो इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई होने का प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय FCE2. दिस इज फर्मी फंक्शन इन कंडक्शन बैंड. देन जो दूसरा स्टेट हम लोग को चाहिए इस प्रोसेस के लिए, वो है एक स्टेट बैलेंस बैंड में जहाँ पे होल हो. तो होल के लिए क्या हम करते थे, 1 माइनस एफ कर देते थे. फर्मी फंक्शन को 1 माइनस कर देंगे तो इम्प्टी होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा. होल का मतलब इम्प्टी होता है. सो दिस इज 1 माइनस एफ वी E1. E1 is the energy state in valence band and V is subscript for valence band. So 1 minus FV E1. अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये इमिशन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी. So there are two states are involved. दोनों स्टेट, कंडक्शन बैंड में एक स्टेट चाहिए, एक वैलेंस बैंड में स्टेट चाहिए. तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट द टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर emission. So for emission process, this is the total probability. Similarly, अगर हम absorption की बात करें, so absorption के लिए क्या चाहिए? Absorption के लिए चाहिए कि कंडक्शन बैंड में एक स्टेट इम्प्टी हो, एक स्टेट ऐसी हो जो खाली हो, जहां पे बैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाए. एब्जॉर्प्शन के लिए तो यही है कि वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा. तभी उस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो फोटॉन से मिलेगा. सो दिस इज व्हाई वी आर राइटिंग FAV. FA nu is the frequency of photon that is being absorbed, that is for particular transition. A is for absorption. F हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या चाहिए कि कंडक्शन बैंड में एक स्टेट इम्प्टी हो, तो उसका फॉर्मूला कैसे आएगा? 1 माइनस फर्मी फंक्शन. स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड वी आर सेइंग E2 and for valence band we are saying E1. So this is 1 minus FCE2. This is given by this formula. So this is the probability for an empty state in conduction band. And then FPE1, this is occupied state in valence band. Valence band में एक इलेक्ट्रॉन है, किसी E1 स्टेट पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी. और E2 स्टेट में E2 स्टेट इम्प्टी है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी. So this is given by, if you multiply these two, so we get the occupancy probability for absorption. So I hope you understand what we mean by absorption and emission and what are these different states involved in this transition and what is the probability of occupancy for these states, and that is being multiplied. तो इससे हमको absorption emission की probability मिली. आगे हम लोग कमिंग क्लासेस में हम लोग इसके बारे में और डिस्कस करेंगे. तो probability of emission and absorption. फिर हम लोग एक फैक्टर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है. We will discuss other factors, rate of emission, absorption. तो rate के लिए बेसिकली जो डेंसिटी ऑफ जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट हमने निकाला है, फैक्टर हम लोगों ने एक फैक्टर ये डिस्कस किया. दिस इज जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट. ये जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट यहाँ बताता है. तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी क्या होगा और ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फिर हम लोग डेंसिटी क्या होगा पर्टिकुलर ट्रांजिशन के लिए. तो ओवरऑल अगर हम लोग समराइज करें आज क्या क्या चीजें डिस्कस किया, तो एक तो हमने ये तो काफी चीजें पहले बात की थी. आज हम लोगों ने एक जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट या डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर फोटॉन क्या होगा उसके बारे में बात किया. क्या डेरिवेशन
कैसे है इसको थोड़ा सा डिस्कस किया। बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो कंसेप्ट है वहीं से इसको हम डराइव कर रहे हैं। यहाँ पे E2 और E1 डिफाइन किए, E2 और E1 जो भी स्टेट्स हैं, और फिर यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा दिया, वी गॉट के स्क्वायर, और फिर के स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखते रहे हैं, एच न्यू माइनस सी जी से कंडीशन मिल जा रहा है। तो यहाँ हमको ये फार्मूला मिल जाता है, एंड वी सी डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ फोटॉन वेरीज विद एनर्जी। लेकिन Eg जो है, Eg के पहले का जो फोटॉन की बात करें तो वहां पे उसकी डेंसिटी ऑफ स्टेट नहीं है, but after Eg this varies like this, the parabolic nature is valid. And then we talked about the occupancy probability. Occupancy sometimes is represented using फिर भी हम लोग इसको represent there are different modes. Occupation probability इसलिए इसको यूज किया, otherwise we can use it. फिर ये पता है, इनका फार्मूला पता है ना, फर्मी फंक्शन का तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, बट सिंस वी आर टॉकिंग बैलेंस बैंड अलग अलग, तो हमको जो ये उसमें ये फर्मी फंक्शन EFV एंड EFC, तो ये EFC और EFV क्या होगा, मतलब इसको हम लोग अगले क्लास में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हाउ this concept of Fermi function we take in when we are putting this thing. अभी तक हम लोग सिर्फ Fermi function define करते थे. Now we are putting this subscript C and we have to do it because there are different energy level, different states are involved. So we'll see how this breaking happens and how we can define the concept of Fermi energy in conduction band. But why we need Fermi function, two Fermi functions, one for valence band, one for conduction band. So to explain this there are different factors. The thermal equilibrium जो है वो उसी से हम लोग इसको ये सारे transitions को explain नहीं कर सकते. There are other factors coming in. So we have to introduce the concept of Cauchy equilibrium. And when we are talking about Cauchy equilibrium, जैसे कि हम लोग ने वो बोला कि उसमें दो पंप लगा दें तो फिर हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, और there are a lot of things happening. So we have to consider both bands separately. कंडक्शन बैंड को हम लोग सेपरेट तरीके से समझे, वैलेंस बैंड को हम लोग अलग तरीके से समझे, तो फिर वहां पे दो फर्मी फंक्शन हम लोग यूज करें। फर्मी फंक्शन का जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होगा, दैट विल बी सेम, बट it is required. So that is why we have introduced this concept, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लेके आते हैं। तो ये हम लोगों ने जान लिया था ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी। अगर हमको इमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात करनी है, सो वी कैन डू कि हम लोग इमिशन के लिए क्या चाहिए कि एक स्टेट बैलेंस बैंड में एम्प्टी हो, कंडक्शन बैंड में एक स्टेट फुल हो, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके बैलेंस बैंड में एक होल के साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, तभी इमिशन होगा। तो हम ये दोनों स्टेट के अलग अलग प्रोबेबिलिटी लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट नो दिस प्रोबेबिलिटी फॉर इमिशन, प्रोबेबिलिटी फॉर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे आके हम लोग अटक गए थे, तो अभी एक इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर लिया, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर फॉर जो भी हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझना चाह रहे हैं। सो लेट अस ट्राई टू ओपन, एक हैंड आउट है मेरे पास, उसमें हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात की है। सो आई विल शेयर दैट थिंग एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर की जो ट्रांजिशन रेट की बात कर रहे हैं और क्या क्या फैक्टर, जैसे हमने यहाँ पे बोला कि 3 फैक्टर्स है, एक ऑक्यूपेंसी प्रोबेबिलिटी, एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और डेंसिटी ऑफ स्टेट। तो ये जो 3 चीजें हैं इनको हम लोग को थोड़ा अलग अलग देखना है। तो दिस इज नोट, हैंड रिटन नोट फॉर 3rd यूनिट, ये तुम लोग के साथ शेयर भी कर देंगे।
तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि 3 प्रोसेसेस हैं और उनके साथ एसोसिएटेड these are the phenomena. Then we talked about radiative non-radiative transition, optical phenon, ये सब चीजें हम लोग बात कर चुके हैं. Optical जो intensity, इस चीज से मैंने तुमको बताया था. Now we are talking about this probabilities of emission and absorption. So here we are representing probability by P. P means probability of emission. This is probability for absorption. तो ये probability आ गया. फिर कह रहे हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम अगर जब केस होता है तो क्या होता है और फिर कॉशी इक्विलिब्रियम क्या होता है. तो हम लोग यहाँ पे हमको कॉशी इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ेगी क्योंकि देयर आर नॉट ओनली टेम्परेचर इज नॉट द ओनली फैक्टर व्हिच इज अफेक्टिंग दीज प्रोसेसेस. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कॉशी इक्विलिब्रियम. तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो फर्मी फंक्शन यूज कर रहे थे उसको हम लोग C लिख दिया, यहाँ पे V लिख दिया. ठीक है. तो बेसिकली होगा क्या, 2 फर्मी लेवल भी हम लोग यूज करेंगे. एक फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के लिए बोलेंगे, एक फर्मी लेवल बोलेंगे बैलेंस बैंड के लिए. तो जो वीडियोज मैंने प्ले किए हैं वो अभी तुम्हारे साथ उसमें शेयर कर देंगे. तो जब तुमको टाइम मिले तो यू कैन लुक विद मोर डिटेल. तो ये जो है तो ये फॉर्मूला हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि इमिशन होगा तो क्या होगा, एक कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन हो और बैलेंस बैंड में एक होल हो. तो इलेक्ट्रॉन का ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी एंड होल का ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय वी गेट प्रोबेबिलिटी फॉर इमिशन. सिमिलरली वी गेट प्रोबेबिलिटी फॉर एब्जॉर्प्शन. अभी हम लोग क्या करते हैं कि ये जो फर्मी फंक्शंस हैं इनके फॉर्मूला तो हमको पता है, वी नो व्हाट इज फर्मी फंक्शन. So we just put this value. E2 is the energy level, E1 is the energy level. So, but where the thing will change, where we used to Fermi function में हम लोग क्या करते थे, E minus EF by KT करते थे. लेकिन अभी हम लोग EF simply use नहीं कर सकते. Cauchy equilibrium का situation है, so we use EFC and EFV. ऐसे हम लोग इसको यूज करेंगे. तो हमने 2 फर्मी लेवल डिफाइन कर दिए. For the conditions of Cauchy equilibrium, we need 2 Fermi levels, one for conduction band, one for valence band. So अभी क्या कर रहे हैं, ये हम लोग इसकी बात कर रहे हैं. तो इसमें क्या किया, फर्मी फंक्शन को का वैल्यू रख दिया. तो 1 upon e to the power e minus ef by kt plus 1 होता है. E क्या है, यहाँ पे E2 है और EF की जगह पे हम लोग EFC लिखेंगे. तो EFC by kt plus 1 and this is 1 minus. So if you simplify this, you will get like this. Similarly, we can do this. तो अभी एक स्पेशल सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि इमिशन एब्जॉर्प्शन ये बोले कि अगर ऐसी सिचुएशन है कि व्हेन एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इमिशन ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कम है, तो ऐसी सिचुएशन करने के लिए जैसे थर्मल, जैसे जो लेजर टाइप की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमको क्या कंडीशन चाहिए. So if you put we know these 2 formulas. If you put probability for emission is greater than probability for absorption at particular कोई ऐसे कंडीशन है जहां पे हम बोलें तो क्या होगा. If you put these both दोनों इक्वेशन को हम लोग इसी जगह पे रखें, फिर कॉमन फैक्टर्स हटा दें. So what we will get, EFC minus EFV is greater than E2 minus E1. E2 minus E1 is means H nu. ये जो आता है फोटान जो फ्रीक्वेंसी फोटान निकलेगा वो एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है वही हमको बताएगा कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटान. So E2 minus E1 is H nu and और ये जो एच न्यू है ये हमने शुरू से ही बोला है कि कोई भी फोटॉन बैंड गैप से कम एनर्जी का नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्टेट्स बीच की हैं दे आर फॉरबिडन स्टेट्स. सो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स एग्जिस्ट इन आफ्टर द एज. कंडक्शन बैंड के जो ईसी होता है उसके ऊपर और बैलेंस बैंड में जो ईवी होता है उसके नीचे जो स्टेट्स है. तो E2 माइनस E1 ये जनरली फोटॉन का एनर्जी जनरली बैंड गैप के आसपास ही होता है, क्योंकि ये सारी जो प्रोसेसेस होती हैं ये जो स्टेट्स एजेस हैं कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के, उनके आसपास की स्टेट्स में ही होती हैं. बहुत दूर
उतने एक्टिविटीज नहीं होती है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज क्लोज टू ईजी. तो E2 माइनस E1 ऐसे इस कंडीशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं कि फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, दिस शुड बी द दिस कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड. द कॉशी फर्मी लेवल और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को अगर हम उनको घटाएं तो उनका वैल्यू बैंड गैप से ज्यादा होना चाहिए. तो दिस इज वन कंडीशन कम्स इन. जैसे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की बात की, वहां से हमको एक कंक्लूजन मिले यहाँ पे. फिर अगर हम लोग रेट की बात करें तो हम लोगों ने बोला कि रेट ऑफ इमिशन एब्जॉर्प्शन हमको निकालना है बेसिकली. तो ये एक एक्स्ट्रा चीज हम लोग यहाँ पे सीख लिए क्योंकि हमने जस्ट इसकी वैल्यू रखी एंड वी गॉट दिस concept. This should be the condition for if we want a system where emission probability ज्यादा है absorption से, तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए. अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो सकता. So rate of emission and absorption, how we need? So rate of emission per unit volume per unit time. Rate की जब हम बात करेंगे, rate मतलब क्या है? Number of emission और absorption, जिसकी भी बात कर रहे हो. Rate of emission and absorption per unit volume per unit time. तो हम लोग इसको लिख रहे हैं इसे गामा SP. SP मतलब spontaneous emission. हम लोग spontaneous emission की बात कर रहे हैं. So it depends upon what? It is proportional to rho nu. Rho क्या है? Density of state for photon. Photon जो joint optical density की हम लोग बात कर रहे थे कि वो of a probability. If you remember when we used to calculate concentration of charge carrier, तो हम लोग क्या किए कि ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी फर्मी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी ऑफ स्टेट से, तो हमको मिल गया कितने कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर. तो कंसंट्रेशन क्या होता है कि यही तो होता है कितने सारे चार्ज कैरियर हैं पर यूनिट वॉल्यूम में. तो यहाँ पे जब हम लोग रेट इमिशन की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं कि कितने सारे ट्रांजिशन हो रहे हैं, तो फिर हम लोग वही चीज करेंगे. If you remember that when we calculated carrier concentration in unit 2, so what we did, we probability function, that was Fermi function at that time, and the density of state, इन दोनों को multiply कर दिया तो हमको पता चल गया carrier concentration. So now when we are talking about emission and absorption, so this is photon and there are two states involved. That is why we have to learn two new concepts. When we learn joint density of state, means density of state for photons, that is rho nu, and then we discuss this concept just now, the probability for the emission and absorption. So when we multiply these two things, then we get a rate. Like we used to get carrier concentration there. Here we are getting rate of emission and rate of absorption. So rate of spontaneous emission is proportional to rho nu and P subscript में हम लोग लिखते हैं E and bracket में nu. Nu is the frequency of photon that is being emitted in the emission, and this this is joint density of state photon, and this is so this is proportional to rate of spontaneous emission. अगर हम proportionality constant हटाते हैं कहीं भी से, proportionality constant हटाते हैं तो क्या होता है, एक हमको कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है, कोई फैक्ट कांस्टेंट बढ़ाना पड़ता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो इट इज ए rate of spontaneous emission is equal to A rho nu and PE nu. So this is a constant. ये किस पे डिपेंड करता है बोल रहे हैं. So this is equal to 1 upon tau r. Tau r क्या है? This is radiative recombination time. जब रिकॉम्बिनेशन होता है इसमें कितना टाइम लगता है. तो दिस इज एन, ये कैसे आया इसमें हम लोग बहुत डिटेल में ना जाके, वी जस्ट टेक इट ए कांस्टेंट फॉर एन पर्टिकुलर emission when we are talking. This is a number.
So total number of spontaneous emission is equal to radiative plus non-radiative. स्पॉन्टेनियस इमिशन जो हो रहे हैं उसमें दो तरह के ट्रांजिशन हो रहे हैं, एक में फोटान निकल रहा है, एक में फोटान नहीं निकल रहा है। तो हम लोगों ने बात किया था कि दिस इज रेडिएटिव एंड नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। सो तो ये बोल रहे कि अगर हमको इसके टाइम की बात करनी हो तो दिस इज वी कैन डू 1/τr plus 1/τau nr. R is the radiative transition and R is the non-radiative transition. So this is time. We are talking about this. Tau is recombination time. और तो हम ऐसे कर सकते हैं 1/tau total recombination time जो बात कर रहे हैं, it is addition of this tau r and tau nr. डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, रेडिएटिव ट्रांजिशन tau r और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन दोनों के लिए बोल दिया। तो डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में रेडिएटिव ट्रांजिशन ज्यादा होते हैं, तो tau r is अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बोले tau nr, बट इनडायरेक्ट बैंड गैप में जो nr है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, वो काफी ज्यादा होते हैं। So this condition comes in. We are not much worried about this thing. We are just trying to understand this thing. So that is PE or rho E. This is rho. Rho is represented by joint density of photon. जो joint density पहले हम लोगों ने सीखा, और P हम probability को represent कर रहे हैं। This is PE. If you read, this is like this. हम लोग इसको पहले जैसे नोट्स में दिखा रहे थे वहां पे F से represent कर रहे थे, तो क्योंकि हम probability कर रहे हैं तो इसलिए probability को P से represent किया। तो rho जो है joint density of state, joint density of photon है, and this is जैसे कि हम लोगों ने वहां पे किया था, जब हम कैरियर कंसंट्रेशन निकाले थे तो डेंसिटी पे स्टेट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया था तो रेट कैरियर कंसंट्रेशन मिल गया था। यहाँ पे जब हम इमिशन की बात करें तो हम लोग ज्वाइंट डेंसिटी या फोटॉन को इमिशन की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हमको रेट मिल जा रहा है। दिस इज द ओनली थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड वेल। फिर अभी जो है कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो कांस्टेंट्स होते हैं, ए है जैसे ये एक कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप, ये सब की डिटेल में बहुत सारा ना जाके, तो ऐसे रेट ऑफ इमिशन और रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन, ऐसे करके हम लोग कई सारी चीजों को देख सकते हैं। तो दिस इज रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, दिस इज फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो ये इनके इस पे आइंस्टीन ने काफी काम किया, और दीज आर द फैक्टर्स, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इनको आइंस्टीन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ए एंड बी। ए और बी, बी कब आता है, बी एब्जॉर्प्शन के लिए बोल रहे हैं, when we are talking about spontaneous emission, so this is R we say gamma, we are saying it is because this is gamma is represented by these rates are represented by gamma, but it looks like R here, so मतलब वैसे रेट R से है तो हम R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। These notations are sometime in different book, different type के notations होते हैं, but we try to use एक जैसा यूज करें तो अच्छा बात है। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसके लिए बोला स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए, ऐसे ही तो ये बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन में जैसे हम लोग एक एनर्जी लेवल है E1, एक है एनर्जी लेवल E2, तो यहाँ पे जब लेजर होता है, लेजर में एटॉमिक सिस्टम होता है लेजर में, तो वहां पे दो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनमें एक लेवल में कुछ इतने एटम्स हैं, दूसरे लेवल में इतने एटम्स हैं। तो N1 N2 एक कंडीशन लेजर के लिए हमको लानी पड़ती कि इस लेवल में ज्यादा एटम्स हो जो यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेजर्स, बट since semiconductor lasers are also there, so that is why these concepts, this emission concept, we have to apply there as well. So this is for atomic system, spontaneous emission का जो रेट होता है ये प्रोपोर्शनल होता है कि यहाँ पे
दूसरा जो हायर लेवल है वहां पे कितने सारे एटम्स बैठे हैं. सो देन वी कैन से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो SP इक्वल A n2GeV, और स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए B इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड देन n2 देन न्यू EGV. एंड एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, B n1. एब्जॉर्प्शन के लिए जो n1 में जितने नंबर्स हैं वो डिपेंड करता है. n1 मतलब एनर्जी लेवल जो नीचे है उसमें कितने सारे एटम्स बैठे हैं. एंड ये जो कांस्टेंट्स हैं इनको AB को आइंस्टीन कोएफिशिएंट कहा जाता है. And there is a relation between Einstein coefficient A by B is equal to given by A at pi h nu cube upon C by n cube. C by n is the refractive index of a medium. So this is for general information कि atomic system में लेजर होता है, वहाँ पे क्या होता है. और but here we are not much worried about this atomic spectrum. So we are worried about this part. And then you see here, if you want to talk about this, so these things for atomic spectrum, but these constant AB, if you see all these numbers are constant, so nu is the frequency, so nu is not a problem for us. So you see, this is spontaneous emission. We can write analogies, जैसे यहाँ पे लिखा गया, इसी analogy से हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा. Spontaneous emission का जो रेट है, it is proportional to A rho nu PE nu. And stimulated emission, we are saying this is just T. Stimulated emission का जो रेट है, nu is equal to B. B is a constant. Rho nu मतलब density of state for phonon, that is joint density जो हम लोगों ने define किया. Then rho E nu, rho E मतलब probability. And then this is a function UR. UR एक फंक्शन है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये फंक्शन किस पे डिपेंड करता है. बट U nu is an it depends upon frequency. तो जो जब स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, फिर रिमेंबर स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए हमको एक फोटॉन पहले से देना पड़ता है. जब हम एक फोटॉन देते हैं तो 2 फोटॉन आउटपुट में मिलते हैं. एक फोटॉन, दिस फोटॉन ट्रिगर्स एक ट्रांजिशन ट्रिगर करता है वो इमिशन. तो इसलिए जो लेजर होते हैं उसमें एक लेजर की कुछ प्रॉपर्टीज काफी अलग होती है. तो ऐसे यहाँ पे हम लोग देखें तो ये चीज हमारे काम की है. तो स्टिमुलेटेड इमिशन का ये फॉर्मूला. एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है, B nu, एंड देन हियर वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन. हम लोगों ने ऊपर इसको कैलकुलेट किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. सो यू सी दिस इज लाइक दिस. सो हियर एंड A B के बीच में रिलेशन क्या है, these A and B are known as Einstein coefficient, and there is a relation between A and B. A is equal to 1 upon tau R. R is the radiative time, रिकॉम्बिनेशन टाइम. जो रेडिएटिव ट्रांजिशन हो रहे हैं उनका रिकॉम्बिनेशन टाइम को हम लोग टाउ आर बोलते हैं. और 8 पाई h न्यू क्यूब. h is the Planck constant, nu is the frequency, and c by n. C is the velocity of light, and n is the refractive index of a medium. ये जो भी हम कहीं मीडियम में ट्रांजिशन हो रहे हैं उसके लिए होता है. सो दिस इज अबाउट रेट. तो अभी हम लोग देखें तो हम इनकी वैल्यूज रख सकते हैं. अब इफ यू रिमेंबर वी हैव कैलकुलेटेड समथिंग हियर. यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया है. इधर इसके पहले हम लोगों ने जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट किया. तो जॉइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट वाज दिस फॉर्मूला. इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड दिस. And you see, this is the last line of this. This is the formula for rho nu. Rho nu का formula हमको पता है और हमने यहाँ पे ये भी कैलकुलेट कर लिए. तो ये भी formula हमको पता है. तो हमको इसकी वैल्यू यहाँ पे अब रखेंगे जब आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं. तो this is spontaneous emission. A का वैल्यू है 1 upon tau r. This is rho nu का वैल्यू रख रहे हैं 1 upon pi h square 2mr square 2mr to the power 3 by 2 h nu minus Eg to the power half, and then rho nu. फिर ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे बोले कि rho nu का वैल्यू अगर हम लोग ऐसे रखते हैं. थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम पे EF एक ही है.
देयर इज नो क्वासी फर्मी फंक्शन, दो फर्मी फंक्शन नहीं है, एक ही फर्मी फंक्शन है। जब हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जब कॉची इक्विलिब्रियम कहते हैं तो कॉची फर्मी फंक्शन आ जाते हैं। तो वहां से कैलकुलेट किया तो ये अगर हम इसमें एफ सी और एफ वी अगर अलग अलग ना रखें तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड लाइक दिस। एफ ये फर्मी फंक्शन, इसका वैल्यू रख दिया, दिस इज 1 माइनस E1, ये वैल्यू रख दिया, एंड देन इफ यू कैलकुलेट E2 माइनस E1 KT, E2 माइनस E1 क्या होगा, यही तो ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसका जो एनर्जी का डिफरेंस है यही फोटॉन का एनर्जी होगा जो होगा। तो मींस दिस probability of spontaneous emission at thermal equilibrium is proportional, is given by this e to the power minus h nu by kt। यहाँ पे क्या किया, सिंपल फार्मूला लगाया, थर्मल इक्विलिब्रियम में एक ही फर्मी फंक्शन है, कॉची इक्विलिब्रियम में दो फर्मी फंक्शन अलग अलग हो जाते हैं, तो ये यहाँ पे आ गया एंड यू गॉट दिस। कॉची इक्विलिब्रियम में देखो क्या होता है, अगर हम कॉची इक्विलिब्रियम में बोले तो हमको EFC और EFV अलग अलग लिखना पड़ेगा, देन वी गेट दिस थिंग e to the power minus h nu by kt तो आएगा, और एक एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा। ये नोट्स मैं उसमें LMS में अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोग इसको कॉपी पेन से खुद से करना तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, अगर हम लोग वहाँ पे ऑफलाइन क्लास कर रहे हो तो ये बोर्ड पे लिख के करते, बट यहाँ पे ऐसे ही नोट्स है उसमें समझाना पड़ रहा है। सो यू सी कि कैसे, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, वी नो द लॉजिक। EF2 1 माइनस EF1 ये लिखा है, फार्मूला जस्ट रख रहे हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो कॉस इक्विलिब्रियम में एक ही फर्मी फंक्शन होता है, तो ऐसे हो गया। तो कॉस इक्विलिब्रियम में दो फर्मी फंक्शन हो जाते हैं, ये कंडक्शन बन के अलग हम लोग फर्मी फंक्शन लिखते हैं और उसके लिए अलग लिखते हैं। तो ये आ गया। सो यू नो दिस, नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यू आल्सो, ये यहाँ पे रखा, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ये रखा, ये रखा, और इसकी हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। सो 1 upon tau r, दिस इज कंप्लीट थिंग, दिस इज फॉर, ये क्या बात है, कॉची इक्विलिब्रियम। तो ये वैल्यू रखा है सारा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, फिर बोले तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग h nu माइनस एच जी बन गया, ये यहाँ पे भी था, इधर भी h nu माइनस एच जी बन गया। सो if you remember there was a condition where क्या होता है, ये यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि for the situation where emission should be greater than absorption, this condition should be valid. EFC minus EFV should be greater than EC. So this thing here is also being utilized. तो पहले हम लोगों ने ये रखा और इसकी वैल्यू रखी, then 2mr EG minus kg h nu, तो ये h nu minus EG, अगर हम लोग इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं कॉची इक्विलिब्रियम में, देखो थर्मल इक्विलिब्रियम में हमको ये वैल्यू मिली है एंड कॉची इक्विलिब्रियम में हमको ये वैल्यू मिली। तो अभी हम लोग जो यहाँ पे रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं रख रहे हैं ना, तो अगर हम इसकी वैल्यू रखें, थर्मल इक्विलिब्रियम में एक फार्मूला आएगा और एक कॉची इक्विलिब्रियम में एक फार्मूला आएगा, तो उसको रखेंगे अगर, देन वी गेट टू द सॉल्यूशन। एक इस तरह का फंक्शन मिला है, इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं h nu माइनस eg को हम अगर x मान लें तो क्या होगा, और ये सब इसलिए कर रहे हैं कि जस्ट हम देख पाए कि कैसे सिचुएशन में स्टार्ट होता है। तो ऐसे हम लोग रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। यू डोंट नीड टू गो टू इनटू दैट ग्रेटर डिटेल की, बहुत ज्यादा एक लॉजिकली कुछ समझ में आए कि क्या हो रहा है और ये डेरिवेशंस वगैरह हम क्या देखना चाह रहे हैं इसको। फिर यहाँ पे क्या किया है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन को एनर्जी के साथ प्लॉट किया है, h nu मतलब एनर्जी, यहाँ पे रेट प्लॉट किया है, तो h nu ये है फंक्शन, यहाँ पे अगर हम इसको प्लॉट करें तो Eg प्लस हाफ KT पे कह रहे हैं कि यहाँ कुछ आ रहा है, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस इमिशन है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन कहाँ पे मैक्सिमम है,
तो ईजी के आगे ही मैक्सिमम है। पहले तो ईजी तक तो कुछ है ही नहीं, इमिशन ही नहीं होगा बैंड गैप से नीचे अगर है तो एनर्जी। तो बैंड गैप एनर्जी कब शुरू हुआ है, जब ये ईजी के आगे शुरू होगा। और मैक्सिमम कब हो रहा है यहाँ पे, ईजी प्लस हाफ के टी। सो फॉर, तो ये सब काफी सारी चीजें लेजर के बारे में बात कर रहे हैं कि लेजर में क्या क्या चीजें ऐसी। एलईडी, एलईडी में कब ये एक जो बैंड ब्रेड्थ होता है, इसको बैंड ब्रेड्थ बोलते हैं। ये जो वैल्यू है, जो पीक है जहाँ पे हाफ होता है, वहाँ पे जो विड्थ होती है उसको बैंड ब्रेड्थ बोला जाता है। तो ये सब लेजर की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, या जो भी हम एलईडी यूज कर रहे हैं तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कितनी बैंड में वो इमिट करेगा। ठीक है। देन इफ वी टॉक अबाउट रेट ऑफ, तो अगर हम कंक्लूडिंग टाइप की बात करें तो यू कैन सी कि हम लोगों ने रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन का बात शुरू किया। फर्स्ट वी टॉक अबाउट दिस कि डिपेंड्स अपॉन दिस, देन वी टॉक अबाउट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, इट इज 1 अपॉन टाउ आर, दिस इज रिलेटेड टू रिकॉम्बिनेशन टाइम। फिर उसके बाद ये सब चीजें छोड़ के सोचो यहाँ पे हमने वैल्यू रखा, दिस इज 1 अपॉन टाउ आर, ये जो रो का वैल्यू था वो रख दिया, इसका वैल्यू रख दिया। तो दो सिचुएशन है जब हम लोग कॉस इक्विलिब्रियम और उसकी बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की, तो वहां से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू ये होती है, कॉस इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू होती है। फिर अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, देन वी गेट टू नो सम कंडीशन, एंड फ्रॉम दैट कंडीशन यू कैन सी कि ये अगर यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू है Eg प्लस हाफ के टी, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है। So that is how we can understand about this rate. And then if we go into और जो दूसरी प्रोसेसेस हैं, स्टिमुलेटेड इमिशन और एब्जॉर्प्शन, तो उसमें भी कुछ अलग नहीं करना है। दिस इज यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट B आ गया। So the A and B are Einstein coefficient, and since it is stimulated emission, so हम लोग जो ये प्रोबेबिलिटी लिखेंगे PE न्यू, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है तो उसको हम लोग लिखेंगे PA न्यू। और एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, ये एक की जगह B हो गया और एक एक्स्ट्रा फैक्टर है। सो दिस इज अब हम लोग इसको समझते हैं। तो नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन पर यूनिट टाइम इन वॉल्यूम एलिमेंट STC, ये होता क्या, नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमको कुछ वॉल्यूम दे दिया गया तो उसको वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोलो नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन पर यूनिट टाइम इन द वॉल्यूम एलिमेंट STZ। STZ इज वॉल्यूम एलिमेंट। यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक सेमीकंडक्टर है, ये यहाँ पे कुछ डाल रहे हैं इंटेंसिटी, यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी निकल रहा है। स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए हमेशा हमको एक फोटॉन देना पड़ता है, तब हमको 2 फोटॉन मिलते हैं। तो फिर कितना रेट का मतलब यही है ना, कितने सारे फोटॉन निकल रहे हैं, अगर हमको ऐसी बात करनी है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सी अ सेमीकंडक्टर इज देयर। सेमीकंडक्टर में एक छोटा सा एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये 0 से Z तक इसकी लंबाई है। एक स्मॉल सा एरिया लिया, उस एरिया को बोलें Z प्लस TZ, उसका कुछ एरिया है, तो उसका अगर हम लोग वॉल्यूम बोलें तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें SDZ। DZ इज द थिकनेस, S इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो उसका वॉल्यूम हो गया। तो बोले इतने वॉल्यूम से सेमीकंडक्टर के कितने फोटॉन निकल रहे हैं। Okay, so the stimulated emission per unit time in volume element, तो जो रेट है, ये रेट जो लिखते हैं ये है पर इन नंबर ऑफ इमिशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन अभी वॉल्यूम हमने बता दिया इतने वॉल्यूम से कितना निकलने हैं, तो वी गॉट दिस थिंग RST न्यू ST से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हमको इतने पता चल गया कि इतना इमिशन हो रहा है, इतने स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहे हैं, अगर हमको उसकी एनर्जी पता करनी है तो क्या करेंगे, हम उसको एक फोटॉन की एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ फोटॉन हमको पता ही है तो एनर्जी होगी। एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट टाइम इन अ वॉल्यूम एलिमेंट STZ इज RST न्यू STZ
एंड एच न्यू। फिर बोले कि अगर एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम तो कुछ डाल भी रहे हैं, कुछ ले भी रहे हैं, बीच में एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, इमिशन भी हो रहा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर कैलकुलेट करना है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम एलिमेंट एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन। सो वी गॉट दिस। तो टोटल एनर्जी कितनी जनरेट हुई? टोटल एनर्जी आर एस टी मतलब रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन माइनस आर एस आर ए बी मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इमिशन में से एब्जॉर्प्शन घटा दिया, उसको वॉल्यूम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और एच न्यू मतलब एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल एनर्जी इतनी जनरेट हुई अगर हम पूरी प्रोसेस देखें तो एक इक्वेशन बनाया। फिर एनर्जी इंटरिंग पर यूनिट टाइम इनटू द वॉल्यूम एलिमेंट, कितना एनर्जी इंटर कर रहा है उसको बोला आई न्यू जेड इंटू एस। एनर्जी लीविंग, कितना एनर्जी लीव कर रहा है उसको बोला आई न्यू जेड प्लस टी जेड इंटू एस। नेट एनर्जी कितना जनरेट हुआ, दोनों में से घटा देंगे। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एग्जांपल दिखा रहे हैं कि कुछ एनर्जी इंटर कर रहा है, कुछ एनर्जी बाहर जा रहा है। तो दो तरीके से हम लोग इसको समझे। एक तो इंटेंसिटी है, उसको हम एरिया वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता लगेगा कितना एनर्जी है। तो ये इससे हमने एनर्जी निकाले, और एक हम ये रेट जो हमने पढ़ा है उससे निकाला। तो एनर्जी तो सेम ही है दोनों में, तो हम दोनों को इक्वल करें। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल पे रख देते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ पे ये वैल्यू रखा, जो भी यहाँ पे वैल्यू हमारा है उसको रखा, और जो वैल्यू आया इसको रखा। देन ये आई जेड कैंसिल हो जा रहा है। ओके, तो ये कैंसिल हो जा रहा है। तो यू सी डेल आई जेड आई आर बाई डेल जेड इंटू एस टी जेड, एंड दिस इज द फंक्शन विच इज कमिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ये डेल आई न्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू दिस, ये डी जेड यहाँ पे है, ये डी जेड यहाँ पे है, एस टी जेड अगर हम दोनों कैंसिल कर दें, इधर भी मालूम इधर भी मालूम, so we got this, and then we can put this, इसकी वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे पता है, यहाँ पे हमने ये निकाला हुआ है, इनको अगर हम यहाँ पे रख दें so what we get this thing del I nu upon del z r s t minus r a v h nu b rho v u nu, and then this emission का probability minus absorption का probability into h nu। अब u क्या होता है बोल रहे, u is I nu upon v and a b तो बोल्टजमैन कांस्टेंट, ये तो आइंस्टीन कोएफिशिएंट है, ये हमको पता चल गया। और a का वैल्यू 1 टाउ होता है, तो यहाँ से हम b का वैल्यू पता करेंगे, और फिर ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख दे रहे हैं, एंड वी गेट समथिंग सम, उसको सिंप्लीफाई करके हमको इक्वेशन मिलता है। सो अब डेल आई न्यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू, ये फंक्शन आया है इतना बड़ा, तो ये सारे फंक्शन को इन्होंने कह दिया गामा जीरो न्यू एंड आई न्यू जेड। सो आई न्यू जेड इज इक्वल टू आई, इस एक तरह का ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं। यहाँ से जो गामा आता है, ये दिस गामा इज गेन कोएफिशिएंट। बेसिकली हम लोग बात यही कर रहे हैं कि एनर्जी डिफरेंस, कुछ एनर्जी इंटर कर रहा है, कुछ एनर्जी मिल रहा है, कुछ लाइट हम दे रहे हैं, क्योंकि स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए कुछ हमको कुछ दाना पड़ता है, कुछ फोटॉन पहले से देते हैं तब हमको कुछ फोटॉन मिलते हैं। तो ओवरऑल कितना गेन हो रहा है, उस गेन को हम निकालना चाह रहे थे। तो उस गेन को निकालने के लिए क्या किया, पहले एक सेमीकंडक्टर कंसीडर किया, उसमें बोला कि इतना इंटेंसिटी का लाइट हम डाल रहे हैं, फिर इतना इंटेंसिटी मिल रहा है। तो एक तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पे लिया, और एक जो हमने रेट पढ़ा है उसके बेसिस पे किया। दोनों किए, फिर दोनों को इक्वल किया, एंड देन वी डिड सम सिंप्लीफिकेशन,
एंड देन वी रीच टू दिस कंक्लूजन, एक ऐसा फॉर्मेट बनाया और फिर वहां से हम गेन डिफाइन कर रहे हैं कि आई न्यू एल, मतलब एल लेंथ तक जब देखते हैं तो कितना गेन हुआ, एंड आई न्यू जीरो, मतलब जब शुरू में जो इंटेंसिटी था, यहाँ पे जो इंटेंसिटी है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी, दिस इज आई न्यू एल, आई न्यू जीरो, दिस इज आई न्यू एल। इनके बीच में जो रिलेशन है उसको हम e टू द पावर गामा एल लिख रहे हैं। गामा इज द गेन कोफिशिएंट, जितना भी गेन हुआ ये हमको यहाँ मिल गया। सो गामा इज द गेन कोफिशिएंट, गामा का वैल्यू रख रहे हैं। अब हम गामा का वैल्यू अगर हम यहाँ से देखते हैं, कुछ रखते हैं, so we get this is how we can simplify it. So अगर गामा ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब गेन हो रहा है, मतलब एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। गामा अगर लेस देन जीरो है तो मतलब लॉस हो रहा है। तो लेजर एक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, गेन होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सो गामा इज ग्रेटर देन जीरो फॉर व्हेन इमिशन इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शन, एंड इमिशन एब्जॉर्प्शन से ग्रेटर कब होगा, जब EFC माइनस EF में जो कॉसी फर्मी लेवल्स है उनका डिफरेंस HNu से बड़ा हो। HNu मतलब जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी एनर्जी से बड़ा हो। तो ये हमको गेन की कंडीशन मिल गई और गेन का कोफिशिएंट मिल गया यहाँ पे। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। यहाँ